attention. We will now move forward to the next agenda of our program. My guru, my father, Sri M. Lakshmana Pallava, a fellowship awardee from Ministry of Culture, and in the first history of International UNIMA Award he received by Sri M. Lakshmana Pallava. Sri Sadananda Pallava, Kerala State Folklore Academy Award winner and my guru also. And he also received the international award from UNIMA International. Ramadas, Raghunath, Sadiq. So we start the showroom, then we go inside and put the lights off and you can see the shadow. Okay, let's begin. गणपति श्री महागणपति विगणदल कुंभ गंभीरधरणी गणपति विघ्नेश वणंगी मूषिक वाहन मोदक हस्तं श्यामल कर्ण विलंबिय सूत्रं वामन रूप महेश्वर पुत्रं विघ्न विनायक पाद नमस्ते मूषिक वाहन मोदक हस्तं श्यामल कर्ण विलंबिय सूत्रं वामन रूप महेश्वर पुत्रं विघ्न विनायक पाद नमस्ते मुन्ने देवगल उरगित्ते वरु मूषिक वाहनने നെയ്തെ ഗണപതി ഭക്തിത്തെ വരു മുക്തിക്കൊരു മുരനെ നെയ്തെ സന്തർക്കാടിത നിന്ദശിരംബുജ കഞ്ചനമേതിലനെ നെയ്തെ അംഗത്തെ ഇരുമിട്ട് തമിഴോദിക ഷൺമുഖനെ നെയ്തെ അന്തത്തേവകൾ വന്ദി കൈതൊഴു മരുതിരു മരുഭവനെ നെയ്തെ ഹരനാടനുടിയ ഉമയാക്കിരുമകനാണ് നല്ല ഉപകാരം രാമനെ പിരിവ് ചെയ്യവേണമെന്ന് சொன்ன കാലത്ത് ലക്ഷ്മണനെയും പിരിവ് ചെയ്തത് നല്ല സന്ദർഭം സീത പർണശാലയിൽ തനിയായിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഒരു സന്യാസി വേഷം എടുത്ത് പോയിക്കൊള്ളുകയാണ് അച്യുതാനന്ദ ഗോവിന്ദ ഗോവിന്ദ
ഹര ഹര ശിവ ശിവ മാദേവ ശംഭു പിങ്കളയാൾ കൊള്ള ബാബ ശിവ ശിവ ഗജമുഖ ഗണനാഥ ശംഭു ശിവഗുണവന്ദിത ഗുണനീത അമ്പലത്തരസേ അരുമരുന്തേ ശംഭു ആനന്ദത്തേ നീ അരുളിരുതേ പൊതു നടത്തരസേ പുണ്യനേ ശംഭു പുരവെല്ലാം വര കണ്ണിയനേ ഹര ഹര ശിവ ശിവ മാദേവ ശംഭു എങ്കയാൾ കൊള്ള ബാബ ഹര ഹര ശിവ ശിവ മാദേവ ശംഭു എങ്കയാൾ കൊള്ള ബാബ ഹരി ഓം ഹരി എന്താ പറഞ്ഞാലി ആരാവുന്നുണ്ടോ ഞാനൊരു സ്ത്രീയാഗ്രഹമായി. നീ ആരാഗ്രഹം നീ എതുക്കാരും ഇവിടത്തിൽ വന്നായി ഞാൻ അയോധ്യമന്നൻ ദശരഥ മഹാരാജാവിനുடைய പുത്രനാണ് ശ്രീരാമസ്വാമിയുടെ പത്നിയാകിലും. ഞാൻ ഉത്സവലാണെന്റെ മുൻവനല്ലേ ലക്ഷ്മി ദേവിക്ക് തത്തുല്യമായി വിളങ്ങാണ് ഹേ ശ്രീ പടകളെല്ലാം സഭേ 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 പടകളെല്ലാം സഭേ 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 நீ கஞ்செடுத்தோ மரமெடுத்தோ எப்படியாலும் போதைகளை அதை சொல்லடா ஹனுமான் വാഴതി പുരുതവല്ലയാകിട വാഴടങ്കതുരെ കേശട ഓടനാനയുട പോവനേയട പോക വെട്ടിലത് പോകിലേ കോടികോണരിയൊരാടി പോകുമെട കൊണ്ട മാവിടി മുനിക്കുമോ വാടമാമതല രൂപതിൽ മരണ വന്മരാവണി നിവാഴ്വട. എടാ ഇന്ദ്രിയത്തെ നീ വായിലാണെങ്കിലെ വാർത്തയെല്ലാം ചൊല്ല വേണം. കോടി സിംഹങ്ങൾക്ക് ഒരു അത്യാഴി പോതുമടാ. ഉന്നെയും ഉൻ രഥത്തെയും എൻ കരുതിലാരെടുത്ത് ആകാശത്തിൽ എഴുതു കൊടുക്കണേ. അനേക മണമക്കളെ നീ കൊടുക്കപ്പെട്ട അസ്ത്രങ്ങളെല്ലാം ഉൻ മുഖത്തിൽ എഴുതു കൊടുക്കേ. ഇന്ത്യയിലായാലും നിന്റെ ഇടയ്ക്ക് വിളിണ്ടോ നിന്റെ അടുക്കണിയേ ഞാൻ കൊടുക്കണേ സഭേ 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 ഇനി അപ്പഴല്ലേ ഗുജറാത്തിൽ മായമണത്തിൽ യുദ്ധം ചെയ്തു കുട്ടികളെണ്ട ഇടക്കൂട്ടെന്താലും പരിപാടി യുദ്ധകളത്തിൽ വിജയക്കൊടുക്കലല്ലവാ വഴങ്ങുന്നത് இந்த விஜயക്കൊടുക്കലെല്ലാം പോകളിക്കാൻ എടാ സഭേ ഇനി അപ്പഴല്ലേ യുദ്ധകളത്തിൽ അശ്വപ്രയാണാലെ കൊണ്ടുപോയി ഓ അശ്വക്കൊടുക്കലെല്ലാം വരികത് അശ്വക്കൊടുക്കലെല്ലാം പോകളിക്കാൻ എടാ സഭേ യുദ്ധകളത്തിൽ അനേകം ബ്രാഹ്മണന്മാരുടെ കൊണ്ടുപോയി അച്യുതനേ നമോ നമ തിരുവടി വായിക്കണം കളന്തവനേ നമോ നമ ഹരിരാമ രഘുരാമ കമലക്കണ്ണ നമോ നമോ നാരായണായ നമ നാരായണായ നമ നാരായണായ നമ This performance will be doing with diyas. If you perform with diyas, we can give more effects with diyas. So here we are performing with the electric lamps, and these are the puppets we are performing. This is Ravan, and here Marija, Hanuman, Sita, and then the lady character Indrajit, then lady character. These all are made with deer puppet, deer leather. Nowadays we are making with buffalo skin. So it is called Tol Pava Kutu.
a ritual and traditional art form. Thank you for giving this wonderful venue. Thanks a lot. I've never seen anyone moving with head like that. Never. Can you imagine a conversation with someone saying, "Oh, mom coming to say, don't touch me." No. So, everybody is listening. Who do you think you are? Do you think you can match the level of expertise that I have? So we change the thing now. So, between me and her, she'll say one line, I'll add another line, then she'll add another line, and we make a story. Okay? Clear? Maybe? Alright. So, we'll do English and mix. You understand English, right? टमाटर की चटनी ना हुई मोहब्बत का सालन हो गया। मियाँ टमाटर की चटनी ना हुई मोहब्बत का सालन हो गया। What is that sound, buddy? तेरी इज्जत। You're telling me you're going to eat myself? Is your mind that dense? You don't understand what I'm saying? I didn't really say, you said something. You don't have any respect left. For who? Anybody, I respect you. the way you're talking back to me right now, that's respect. Please. But I'm speaking so nicely to you. Talking to me nicely. Back talking me. Excuse me. But I'm speaking so nicely. Just look at me, look at my tone, look at you. Well, I'm a lady. And being a lady gives you the liberty to be rude. Are you telling me that ladies are rude? Have you never spoken to a lady? So you are telling me that ladies are rude. I mean, come on. That's like the universal rule, right? You're rude. Well, I'm not speaking for anybody. I'm just speaking for myself. Oh. Yeah. You're a horse? Why would I have a horse? Because horse is a very strong animal. Yes, so? So you do have a horse. No, I don't have a horse. Okay, that's nice. How about a cow? Do I look like a farmer to you? How about a dog? Oh, yes, I have a dog. Oh, how many dogs do you have? 2. 2? What kind of dogs are they? One's a Labrador, one's a Chihuahua. So you're a fancy dog keeper. Aren't I fancy myself? फर्नीचर घूमने नहीं मैंने चलाया था। फर्नीचर ना घूमने नहीं मैंने चलाया था। क्या दोनों की जरूरत तुमको रख लें? वो तो पैदाइशी मामला नहीं निकला। तुम्हारी मम्मी को बताओ। पापा हमने मैंने डाले थे मम्मी का बाल ना हो जाए वरना आज रात मेरा भगवान बाहर से गई। ठीक है, तो मैं काफी टाइम से बहुत वॉक कर रहा हूँ। मेरे पैरों में दर्द है, तो मेरे पैर दबा देना। पापा उसके लिए 100 रुपए लगेगा ज्यादा नहीं। ठीक है, मैं मम्मी को बता दूंगा कि दोनों ने नहीं चलाया था फर्नीचर। ठीक है पापा बस यही याद रखिएगा कल की पार्टी जो आप गए थे वो मम्मी तक ना पहुंच जाए। सर, मैं अभी से आ रही हूँ। और 100 रुपए में जीएसटी भी ऐड कर दें।
लगता है दोनों को कुछ खिला के तुम्हारे पीछे फेंकना पड़ेगा। वहां तक नौबत नहीं आएगी। थैंक यू सर। ओके आपको पता है सर, मुझे थप्पड़ से डर नहीं लगता, एग्जाम से डर लग जाता है। तो खाए मार दीजिए। मारिए। चल ठीक है, नहीं मारता। क्यों लगता है एग्जाम से डर? एग्जाम्स में मैं कुछ भी पढ़ के जाऊं, पेपर के टाइम पे भूल जाती हूँ और फिर मैं कुछ लिख देती हूँ और फिर टीचर आती है और बोलती हैं वेरी डिसअपॉइंटेड Trisha, how could you have done this? देखती हूँ, फिर मैं घर जाती हूँ, फिर मैं रोती हूँ और मैं बोलती हूँ मम्मी मेरे पास 99 आया है। मम्मी बोलती है हाँ 1 मार्क चला गया। मम्मी हाँ। फिर मैं टीचर के पास जाती हूँ, नहीं मानती। कौन है मम्मी? जो 99 मम्मी बोलती है 1 मार्क चला गया। बोलती हूँ हाँ। फिर मम्मी पापा को फोन करती है, पापा बोलते हैं 1 मार्क चला गया। मम्मी बोला हाँ। फिर दोनों हंसने लगते हैं। बेटा तुम्हें पता है बॉयज स्कूल है ना वहाँ, सबके मिला के 99 आते हैं। मेरे एग्जाम में 10 मार्क्स आए हैं। 10 में से 10 100 में से 10। बेटा लेकिन तुम तो किताब में कैसे पढ़ रही थी? क्या पढ़ रही थी? Apparently, आज फिजिक्स का एग्जाम था, मैं ज्योग्राफी पढ़ के कई लेकिन पूरे साल जो तुम स्कूल जा रही थी कुछ तो पढ़ा होगा फिजिक्स का। तो वहाँ क्यों नहीं पढ़ा? मैं भूल गया। भूल गया? तो पहले कोई वायर होती है जो दिमाग में लगाती है वो जी सर, मैं लिखना ही भूल गया। ये तो हमारी डेस्क में घर पर स्कूल में अगर पहनना होता तो इसका तो ऊपर लेके आना जरूर। कौन के स्थान में छोड़ दिया उस पेन को? आज या अभी या कल या अगले साल। एक काम करो बेटा, किचन जाओ, जो सबसे बड़ी छुरी होगी ना उसे ले आओ और यहाँ लगा मेरे। Pretty things, sparkles, glitters, you won't understand, sir. Amazing. Don't shake hands with me, I just got my nail extensions. Brother, don't shake hands with me, I got my new nail extensions done. Please. They are plain with glitter on them. Wow, what kind of glitter is that? It's a polygel. First polygel gel is done. School में लगे इस स्कूल में? My mother does it. So none of you guys have ever done these nail extensions? It takes 3 hours to complete the whole thing. Oh, so basically, so is there a winter break here or summer break? How many months? Right. So what paint do you say this means? It is pink polygel with glitter.
glitter on it. What's polygel? It's the base of the nail. मुझे नेल्स का मैं काम तो नहीं करती हूँ। Very nice. How much did you pay for it? Just 3,000-4,000. Does it actually cost that much? Yes. Shut up. Pink. Pink. And what's the color of pink? The glitter. The glitter. What color is the glitter? It's silver. See. What color is the nail? My name is Mama. Say that गोपी रसोड़े में कौन था? Before this line came, I never knew that this word existed. Rasoda. Rasoda is kitchen, right? Yes, sir. So easy, yeah. Can you imagine? Rasoda. कहाँ सारे रसोड़े थे? Last time was rसोड़े. This is a bar now there. Billions will come out from there. गोपी रसोड़े में कौन था? गोपी रसोड़े में कौन था? So, you never speak to anyone like that. For example, you go and there's a house help at home, and her name is Gopi, and you go there. Would you tell her? Or a glass broke in the kitchen and you say, Gopi, who broke the glass in the kitchen? You never talk like that, would you? Just presume that I'm Gopi. I don't look like Gopi, but let's just pretend I'm Gopi and I'm the house help. And you've heard a glass breaking in the kitchen, and you just suddenly come to me and say, Gopi, how would you say it? Mike? गोपी रसोड़े में कौन था? See? बिल्ली थी. See, again you go. बिल्ली थी. वो आपके पापा की बिल्ली है जो हर जगह सुसु करती है। मेरे पापा की कोई बिल्ली नहीं है. तो आपके पापा नहीं? कॉमन सेंस की बात है. मैंने कहा मेरे पापा के पास बिल्ली नहीं है. तो मेरे पापा कैसे नहीं हुए? तो जो बिल्ली आपके यहाँ आती रहती थी, तो मम्मी को दूध देती रहती, वो कौन है? वो आती थी। मम्मी दूध देती है? गलत करना तो नहीं आती। आपका नाम अनम है ना? हाँ. अनम फातिमा। हाँ. तो फिर मैं करेक्ट कर दूँ। तो इसका मतलब बिल्ली आती है। आपने सुबह कुछ गड़बड़ तो नहीं खाई? मैं गड़बड़ क्यों खाऊंगी? वो तो ठीक है, लेकिन लग तो रहा है। मुझे शौक नहीं है खाने का. गड़बड़? हाँ. क्या पता किसी ने खिला दिया हो। सच्ची में? सच्ची में? सच्ची में? तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? I can't believe it. You can't believe that मेरा दिमाग खराब है। मैं पागल हो जाऊंगी. इसका मतलब आपका दिमाग खराब है। हाँ, है मेरा दिमाग खराब. खुश? ये तो मैं बोल रही हूँ, कब से आपका दिमाग खराब है? मुझे मार डालो. प्लीज. जो ग्लास नीचे टूटे किचन में वही ले आऊंगे।
एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। Whatever fun we had right now, that was secondary. The first thing that I said is the primary motive of why I'm here. Consistency and honesty. Just make sure you have these two things. ईमानदारी बड़ी मायने चीज थी लाइफ में. ईमानदारी बहुत जरूरी थी लाइफ में. It's the most important thing. So get that ईमानदारी in everything, in every aspect of your life. In your relationships, in your studies, between your teachers, and everything. In everything, just be honest. Absolutely honest. And there's a magic that follows. There's a magic that follows with honesty. You might feel sometimes in life that if you're not honest, you might get a little ahead. But just shun that. Make sure you're honest. The end result will be amazing. I'm just giving you my 2 cents out of my experience. Thank you for having me, guys. Thank you so much. So can you call one more person and act my line? I had one line. I had to say that. Please. मैं इकबाल साहब को कश्मीरी में पहले सलाम करना चाहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। तुम कैप्टन थ्रू कश्मीर में। She's very this man from this city. Where? And I told her, where? Good afternoon, sir. My name is Maisha, and I wanted to, I have seen some morally grey characters on screen portrayed wonderfully. What? Morally grey characters. Morally grey? Yes, they were not always good, but they were not always bad. They were somewhere in the middle, and it's really complex. They are complex characters. How do you portray them, in a sense? Morally grey. First of all, everybody in this universe is grey. There is nobody except very few who are angelic in nature, and that's a God's gift. Rest everybody has a black side and a white side. There is no two ways about it. You're too young to understand this right now, but you see, but that is what life is. The whole idea of life is to live that, to realize first, to do good and bad, good and bad, good and bad, and understand and then do good. And how do I do that? So if I have to do something dark, I think, when the camera rolls, I think dark. That's how I think. How, for example, if I'm doing a character which is menacing and dark, then I will speak like that. I put that thing inside me. Only till the camera rolls, no? You cut के बाद मैं तलवार निकाल के आ रहा हूँ. Just for that moment of time. So I just tell myself that that is what I am. In those minutes or seconds or whatever the existing shot is. That's what I do. And the older you get, the more information your brain gives about you. Because you've lived enough to see a lot of emotions. So you put in your emotions because there has to be that one emotion you must have gone through at some particular point in time in your life, and then you bring that in. And when you're younger, then there's always a director who wants this in a certain way, and then he tells you, if you've done something, you take the role. नमस्कार, इमेज टुडे पर आपका स्वागत है। इस समय इमेज टुडे की टीम लामार्ट्स गर्ल्स कॉलेज में है। ऐतिहासिक कॉलेज है और इसमें इस समय आर्ट एग्जीबिशन लगा हुआ है। इस समय अगर तस्वीरें हम आपको दिखाएं तो अंदर की तरफ बहुत सारी जो पेंटिंग्स हैं वो आपको दूर से नज़र आ रही होंगी। हम आपको पास ले चलते हैं और एक एक पेंटिंग को एक एक करके दिखाते हैं। जैसे आप यहाँ पर एंट्री लेंगे तो बाईं ओर अगर आप देखेंगे तो यहीं से जो पेंटिंग का सिलसिला है वो यहाँ पर लगा हुआ है। इसके बाद यहाँ पर एक और पेंटिंग और
अनंत पेंटिंग यहाँ पर लगी हुई हैं। तस्वीरें इतने समय लामार्ट्स गर्ल्स कॉलेज की हैं। अगर हम बात करें ये पेंटिंग्स जब आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि कोई बड़ा आर्टिस्ट है, बड़ा अनुभवी आर्टिस्ट है जिसने बड़े समय लगा करके इन पेंटिंग्स को बनाया है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये पेंटिंग जो है वो बच्चों के द्वारा बनाई गई है। तस्वीरों में अगर मेरे सहयोगी आपको दिखाएं तो यहाँ पे एक बालिका जिसका नाम काव्या सचदेवा है, उसने ये पेंटिंग बनाई है। तस्वीर अमृतसर के गोल्डन टेम्पल की है और यहाँ इस तरह की तमाम तस्वीरें हैं जो यहाँ पर बच्चों ने बनाई हैं और इनकी उम्र बेहद ही कम है। यहाँ पर लावण्या चौधरी जिन्होंने इस पेंटिंग को बनाया है, लावण्या चौधरी उनका नाम है और वो 7th E में पढ़ती हैं। अब आप उनकी उम्र का अंदाज़ा लगा सकते हैं और इसको देख करके उनकी कला का भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है। तो तस्वीरें इतने समय लामार्ट्स गर्ल्स कॉलेज से जहाँ पर फ़ोटो एग्जीबिशन चल रहा है और ये फ़ोटोज़ जो हैं वो बच्चों के द्वारा, देखिए क्लास 8th का बच्चा है जिसने ये तस्वीर यहाँ पर बनाई है और बहुत सारी तस्वीरें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। भारतीय फिल्म जगत के अभिनेता इकबाल खान भी यहाँ पर आज पहुँचे और यहाँ पर उन्होंने जो तस्वीरें हैं एग्जीबिशन की जो तस्वीरें लगी हैं वो इन्होंने देखी। अब तस्वीरें अगर मेरे सहयोगी आपको दिखाते चलें, मैं चाहूँगा थोड़ा सा आगे की तरफ मेरे सहयोगी आ जाएँ और तस्वीरों का जो लुत्फ़ है वो भी आपको साथ साथ देते चलें। जब आप इन तस्वीरों को देखेंगे तो साक्षात आपको ऐसा लग रहा होगा कि किसी बड़े आर्टिस्ट ने बनाई है, बड़े दिनों की मेहनत लगी है। लेकिन हम आपको सच बताएं, यहाँ पे 2-3 दिन के अंदर ही, 4 दिन के अंदर ही बच्चों ने ये तस्वीरें बना करके, ये फ़ोटोज़ बना करके हाथ की जो कला है उसे दिखाया और सबका मन मोह लिया। दाईं तरफ अगर आपको हम ले चलें तो पूरे एग्जीबिशन में अगर आप देखेंगे तो इस तरह की बहुत सारी क्रिएटिव चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। यहाँ भगवान राधा कृष्ण जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। दक्षिण भारतीय शैली के जो नृत्य हैं वो भी आपको देखने को मिलेंगे और दाईं और नॉर्थ ईस्ट में जो भगवान बुद्ध की पूजा होती है उनकी भी तस्वीरें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी और उसके इतर आपको बहुत सारी तस्वीरें एक के बाद एक देखने को मिलेंगी। एक तस्वीर को आप कई एंगल से देख सकते हैं। हिंदी में कहावत है, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, यानी जिसकी जैसी भावना होती है उसको वो तस्वीरें दिखती हैं। एक तस्वीर को आप तमाम एंगल से, तमाम कहानियों से जोड़ करके देख सकते हैं। यहाँ पर जो तस्वीरें लगी हैं वो पेंटिंग तो है लेकिन बहुत सारी कहानियाँ भी वो बयां करती नज़र आ रही हैं। और यहाँ देखें, यहाँ पर जो है बहुत सारी पेंटिंग्स यहाँ पर भी लगाई गई हैं जिसमें अलग अलग है। देखिए गाय और बछड़ा यहाँ पर है और दाईं और थोड़ा सा जो अरबिक टच है वो भी आपको देखने को मिलेगा। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर, जो दाईं तरफ एक घोड़े की तस्वीर हमारे सहयोगी अगर आपको दिखाएं तो ये अरुणिमा राजपूत हैं जो कि सिर्फ क्लास 8th में पढ़ती हैं, क्लास 8D की बच्ची है जिन्होंने इस तस्वीर को तैयार किया है। तो अब आप लेवल ऑफ क्रिएटिविटी बच्चों का समझ सकते हैं कि कितना क्रिएटिविटी का लेवल हाई है, साथ साथ जो कॉन्फिडेंस है वो भी हाई है। इन पेंटिंग्स को बनाने के लिए बच्चों ने बहुत अधिक समय नहीं लिया, बहुत अधिक संसाधन भी नहीं लिए, लेकिन जो आउटकम है वो आपको साफ तौर से दिख रहा है। मेरे सहयोगी अगर आपको दिखाएं तो ये मन को मोह लेने वाली तस्वीर है। ये वो तस्वीरें हैं जो बच्चों ने खुद से तैयार करी हैं और वो बच्चे जो बेहद ही उम्र में छोटे हैं लेकिन उनका काम कहीं से भी उम्र का मोहताज नहीं, उनकी क्रिएटिविटी कहीं से भी उनकी मोहताज नहीं है। हमारे साथ 2 नन्ही बच्चियां हैं जिन्होंने इस पेंटिंग को बनाया है। मेरे सहयोगी पहले तस्वीर को दिखाएं और उसके बाद इसके निर्माता से हम आपकी मुलाकात कराते हैं। क्या नाम है आपका? आनंदी खेर। श्रुति मेहरोत्रा। आप दोनों कौन सी क्लास? हम लोग क्लास 10 में हैं। तो मुझे एक बात बताइए, जब तस्वीर बनाने की बारी आई तो कैसे डिसाइड किया कि यही बनानी चाहिए, और बनाने का अगर आया मन में तो कितना समय लग गया इसको बनाने में? आप एक्चुअली हम लोग को कैट्स बहुत पसंद है एंड पैंथर फैमिली का। हाँ, पैंथर कैट फैमिली का, और हमें कैट्स हमेशा से बहुत पसंद है तो इसलिए। दोनों को पसंद है? हाँ, दोनों को पसंद है। एक और भी कैट है हमारी उधर, और इसमें बनाने के लिए एटलीस्ट 3 हफ्ते लगे। तो 3 हफ्ते का वक्त आपको तब लगा होगा जब आपकी पढ़ाई भी साथ साथ चल रही है। पढ़ाई है, क्लास 10 है तो सब बोर्ड का प्रेशर एंड एवरीथिंग। अच्छा, मान लीजिए जैसे पढ़ाई नहीं होती या छुट्टी का समय चल रहा होता तब कितना वक्त लगता है इसको बनाने में? हम लोग एक साथ 3-3 घंटे के ब्रेक्स में बैठते हैं और थोड़ा थोड़ा पार्ट करते रहते हैं। अगर टाइम लगता है क्योंकि बहुत बड़ा कैनवस है तो कम टाइम लगता है, लेकिन टाइम तो लगता। हाँ, लेकिन एक हफ्ते में ही होता। ये बच्चियां हैं जिन्होंने इसको बनाया। अभी इसको देखने के लिए इकबाल खान जी यहाँ पर आए थे, तो आपने उनको बताया कि क्या बनाया, क्या क्या पूछा उन्होंने? हाँ, उन्होंने पूछा कि ये क्यों बनाया था, तो वही रीज़न दिया कि कैट्स पसंद है इसलिए। हाँ, उनसे मिलके बहुत इंस्पायरिंग लगा। उनने बहुत अच्छी वर्कशॉप कंडक्ट की।
मुझे अब एक बात बता दीजिए, क्योंकि आपने खुद तस्वीर बनाई है लेकिन बहुत सारे आर्टिस्ट ऐसे हैं आपके साथी जो हैं उन्होंने बनाया है, उनसे भी कुछ सीखने को मिला कि नहीं? हाँ, बहुत सारी इंस्पायरिंग पेंटिंग्स हैं, और जैसे ये वाली और ये वाली हमारे जूनियर्स ने बनाई है, तो वो और भी बड़ी बात है कि हमारे जूनियर्स भी इतनी अच्छी पेंटिंग्स बना लेते हैं, तो वो भी हमारे लिए बहुत इंस्पायरिंग है। यही था मतलब। देखिए ये दोनों बेस्ट फ्रेंड है ना, गलत तो नहीं बोल रहे? हाँ, बेस्ट फ्रेंड, बिल्कुल बेस्टी हैं, और दोनों बेस्टी को कैट्स बड़े पसंद हैं, इसलिए जो है वो पैंथर की तस्वीर बना दी। पैंथर एक ऐसी प्रजाति जो बिल्ली की प्रजाति से जुड़ी हुई चीज़ है, बिल्ली की प्रजाति से ही आता है, तो यहाँ से जो है तस्वीरों का सिलसिला यहाँ पे शुरू है। यहाँ पर एक और बिटिया रानी है, आपका क्या नाम है? आना। आना, आपने पेंटिंग बनाई है? कहाँ पर है पेंटिंग? उस तरफ है। चलिए चलते चलते हम बात भी कर लेंगे आना के साथ। आना, मुझे एक बात बताइए, आपने जो भी पेंटिंग बनाई हम दिखा रहे हैं तो उसको जा रहे हैं, जब आप पेंटिंग बनाने बैठते हो तो किस तरीके से आप वो क्रिएटिविटी सोचते हो, उसके पीछे का विज़न क्या रहता है? हम यही सोचते हैं बेसिकली, हम वो पेंट करते हैं जो हम उस समय फील कर रहे होते हैं, एंड उस समय उस मोमेंट पे हमें जो भी अच्छा लगता है जिस तरीके से, क्योंकि हर मोमेंट पे हम अलग अलग चीज़ें फील कर रहे होते हैं, और हमेशा मतलब अगर मैं एक पेंटिंग अभी बना रही हूँ, अभी मुझे कुछ और फील हो रहा है, 15 आवर्स बाद मैं कुछ और फील कर रही होंगी तो मैं कुछ और तरीके की पेंटिंग, तो आउटकम हमेशा डिफरेंट हो जाता है। सो आई थिंक हमेशा जो पेंटिंग हम बना रहे होते हैं वो हमारे उस पर्टिकुलर फीलिंग के ऊपर डिपेंड करती है कि हम क्या बना रहे हैं। तो फीलिंग को क्या आपने कहा बदलती रहती है, तो कई बार ऐसा होता होगा कि ये बना तो दिया पर अच्छा नहीं लग रहा, अब इसमें ये कर देते हैं, ऐसा कुछ होता है? हाँ बिल्कुल होता है। कभी कभार जैसे हम कुछ फील कर रहे होते हैं, हमने कुछ बनाया और फिर हम कुछ देर बाद, जैसे मैंने कहा, हम डिफरेंट चीज़ फील कर रहे होते हैं, तो हमें फिर वो अच्छी नहीं लगती है, तो हम उसको बहुत ज़्यादा बदलते नहीं हैं, बट उस हिसाब से हम थोड़ा चेंज करते हैं कि हाँ इसमें क्या अच्छा लगे, कि थोड़ा सा और हम ऐड कर दें, तो हम थोड़ा अपने फीलिंग्स को मिक्स करते हैं, एंड उसके बाद क्योंकि हम टीनेजर हैं, हम बहुत कुछ फील करते हैं, एंड हाँ। ठीक है, तो मुझे आप अपनी पेंटिंग दिखाएं जो आपने बनाई है। ये राइट साइड में, अच्छा, तो इसमें क्या दिखाने की कोशिश करी है और इसके पीछे की सोच क्या थी? ये पेंटिंग एक बहुत बड़ा सा पोर्टल टाइप का है। ये पेंटिंग काफ़ी मतलब इसमें बहुत सारे तरीके से आप इसको मतलब इसका मतलब निकाल सकते हैं, मगर एक ये हो सकता है कि ये एक पोर्टल है, इसमें एक कोई भी इंसान जा रहा है, एंड हमारी जो लाइफ है वो इतने तरीके से चेंज होती रहती हैं, इतनी एंडलेस तरीके से चीज़ें आती रहती हैं, मतलब लाइफ हमारे ऊपर कुछ भी थ्रो कर देता है एंड हमें उसके थ्रू जाना पड़ता है, एंड तो हमें पता नहीं होता कि हम क्या होने वाला है अगली बार लाइफ में। तो दिस इज़ बेसिकली एक पोर्टल है, हमें पता नहीं वो कहाँ से आया है, क्या है, वो जो जा रहा है उसे भी नहीं पता है, वो बस बट उसके अंदर बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी है कि क्या है इसके थ्रू, तो वो जा रहा है, और उसके बाद वो जाने के बाद जो मतलब अगर उसे डर लग रहा है वो सब दूर हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर जाने के बाद उसे कुछ अच्छा नायाब चीज़ दिखती है जो वो कभी एक्सपेक्ट भी नहीं कर पाता है। तो ये एक मीनिंग जो मैंने निकाला था वो है। और दूसरी मेरी पेंटिंग एक ये है, यहाँ बगल में आ जाइए मेरे सहयोगी जी, आप भी आ जाओ आना साथ साथ। गाड़ी तो भैया बड़ी सुंदर बनाई है आप। थैंक यू सर। बताइए इसके बारे में। इसके बारे में, ये बहुत ही विंटेज कार है और मुझे विंटेज कार काफ़ी पसंद भी है, मतलब काश मैं उस ज़माने में 80s में पैदा हुई होती, मतलब मैं वैसी टाइप की लड़की हूँ, तो मतलब मुझे कुछ वैसा बनाना था जो मुझे थोड़ा पोर्ट्रे करे, इसलिए ये कार मैंने बनाई। ये थोड़ा मेरी लाइकिंग बताता है कि मुझे क्या पसंद है, तो मुझे कार पसंद है, मुझे 80s का ज़माना पसंद है। पुराना ज़माना पसंद है लेकिन जन्म जो है वो नए ज़माने में हो गया है। तो देखिए यहाना है जिन्होंने ये कला यहाँ पर बिखेरी है अपने हाथों से, और ये तस्वीर आपको बहुत पुराने अंग्रेज़ी दौर की जो गाड़ियाँ थी उसकी याद दिलाती है। और ये कहानी जो है, ये तो पेंटिंग वो कहानी है जो जिस प्रकार से उस कहानी को समझना चाहता है वो समझ सकता है। एक तस्वीर है जिसके तमाम पहलू हैं और जिससे जुड़ी तमाम कहानियाँ भी हैं। आप इनकी मदर हैं, क्या नाम है जी आपका? अंजलि सिंह। जब बिटिया रानी इतना बढ़िया काम करती है, और अब आज तो तारीफ़ हुई है बॉलीवुड के एक्टर के ही द्वारा, इकबाल खान जी यहाँ पर थे, तो बहुत अच्छा लगता होगा। वो उसको एक्सप्रेस अगर करना चाहें तो? बस शौक़ है, और जो अपने शौक़ में, जैसा कि इकबाल जी ने भी कहा
बस ऑनेस्टी से और कंसिस्टेंसी से काम करो, वो मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं भी वही सिखाती हूँ अपनी बच्ची को। और इस पेंटिंग में इन्होंने इसको जो हम लोगों ने सोचा था तो ये शून्य है, वो शून्य अब उसमें ढूंढने की, और हर कोई जैसा आपने कहा कि हर कोई उसको अपने तरीके से परसीव कर सकता है, उसको अपने हिसाब से देख सकता है। बस यही, बहुत अच्छा बच्चों ने, सारे ही बच्चों ने बहुत अच्छा काम किया है और मैम और सारे टीचर्स ने बहुत एफर्ट लगाया है, तो बच्चे सीख रहे हैं और आगे और अच्छा करें, यही सोचती हूँ। तो देखिए यहाँ पे हमने आपको दिखाया, ये लामार्ट्स में एग्जीबिशन चल रहा है फ़ोटो का, वही हमने आपको दिखाया है। बहुत सारी तस्वीरें हैं जिनकी अलग अलग कहानियाँ हैं। Ramayana is familiar to all over the world, from not only from India, from abroad also, all know Ramayana. And what we are doing is here is with shadow. That is the main part. When the Sita's dialogues will come, the Sita want to be appear in the screen. When Rama's scenes want to become, or the deer scenes want to be play, so at the time the deer will become. So everybody will understand what we are doing in behind the screens, and the main struggle is behind. So the dialogue is going on at the time the puppet want to become alive. So timing is very important. Yeah, the timing is very important. So puppet want to be alive. So the conversation, like what we are saying, it's like the Rama and Sita will conversation is happening. It's called Tol Pava Kotu. Sir, could you please define that, what the meaning by meaning is? Sure. Tol means leather and Pava means puppet and Kutu means performance. That is called Tol Pava Kutu. In India, 5 states we have shadow puppetry. This is called shadow puppetry. 4 types of puppets are basically shadow, then string puppet, then glove puppet, then rod puppet. So in this, shadow puppet is this one, and it's a Kerala traditional and ritual art form. And I am doing is an 11th generation. You are from the 11th generation. Yeah, my fathers, grandfathers, their grandfathers, they are doing, and after hand over to me, and now I take it to alive. Thank you so much, sir, for having talk with us. हमारे साथ इस वक्त भारतीय फिल्म जगत के अभिनेता इकबाल खान जी हैं। लामार्ट्स गर्ल्स कॉलेज आज पहुंचे थे, जहां पर देखिए अभी फोटोग्राफी का भी दौर जारी है और एग्जीबिशन जब यहां पे नीचे चल रहा था तो वहां पर भी इन्होंने जायज़ा लिया था। सर, आप LMGC आज पहुंचे, लखनऊ के फ़िज़ा में 4 चांद आपने लगाए और बहुत सारे बच्चों से आपने यहाँ पर तारुफ भी हुआ, यहाँ मुलाकात भी आपकी हुई। क्या अनुभव रहा आज दिन भर का वो आपका? मुझे मैं खुद 2 बेटियों का फादर हूँ, तो मेरे एक दिल में एक अजीब सी एक मोहब्बत जागती है बेटियों को लेकर। तो ये मेरी खुशकिस्मती है कि मैं यहाँ पे आया, जो एक गर्ल्स स्कूल है। तो यहाँ के आके यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर और यहाँ की जो हिस्ट्री है इस स्कूल की, ये कितना पुराना है, और यहाँ के सब लोग बहुत मोहब्बती लोग हैं और बहुत अच्छे लोग हैं। तो हैड अ रियली गुड टाइम। अब सर, जब आप यहाँ पर मंच पे थे तो वर्कशॉप का भी आयोजन किया गया, बहुत सारे बच्चे भी आपके साथ में थे। जहाँ पर वो करेक्ट नहीं थे वहाँ करेक्ट भी आपने कहा, कैसे बोलना है वो भी आपने सब बताया। बच्चों को लेके क्या कहेंगे, और ये जो धीरे धीरे आने सिनेमा में आने का एक जो ख्वाब है या फिर जो बच्चे छोटे से सजा लेते हैं, तो उसको लेकर के तैयारियाँ कैसे शुरू करें? क्योंकि अभी आपने अभी समझाया, वर्कशॉप दी, वो गलत जहाँ पर कर रहे थे सही हो गए, बस स्वतः कैसे ठीक करें? मुझे नहीं लगता है कि स्कूल कोई एज है जहाँ पे कोई डिसाइड करना चाहिए कि कोई एक्टर बनेगा या कुछ बनेगा। वो थोड़ा बात में लाइफ में कि कहाँ, क्योंकि कुछ पता नहीं होता ज़िंदगी है वो कहाँ लेके जाएगी। तो सोच बदलती रहती है हर एज में। हाँ, कभी जब छोटे बच्चे होते हैं तो एस्ट्रोनॉट बनना चाहते हैं, फिर इंजीनियर, फिर डॉक्टर, फिर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो वो हमें कभी दिमाग में नहीं बच्चों के डालना चाहिए कि अगर तू इसमें थोड़ा अच्छा है तो बस यही करना, क्योंकि हमको पता नहीं होता है ऊपर वाले ने क्या पता कुछ डिसाइड किया हो कि वो बच्चा और भी कुछ अच्छा कर सकता है इससे बेटर। तो और आजकल तो सब लोग थोड़ा सा बहुत फेम अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं, तो उससे बहुत बढ़िया रिजल्ट नहीं होता चीज़ों का। दिखावे की दुनिया से इतर जो हम कर सकते हैं उसकी तरफ में बढ़ना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और एक एज होती है जब आपको, तभी तो स्कूल में एक जो यूनिफॉर्म पहनते हैं हम, उसका मतलब क्या होता है कि सब चीज़ एक जैसी है।
तो हम सबको वही पढ़ना होता है, ये तो कहीं नहीं लिखा होता। या हमने देखा है कि जो पढ़ाई में बहुत अच्छा था वो बहुत अच्छा लाइफ में कर रहा है, ऐसा कभी नहीं होता ना। होता है लेकिन इसकी गारंटी नहीं होती, गारंटी नहीं होती इसकी। या कभी ये नहीं होता कि अरे यार वो तो हमेशा फेल होता था, कि वो तो यार उसका भी लाइफ में भी फेल हो गया, तो कुछ पता नहीं था स्कूल में। स्कूल एक ऐसा स्टेज है लाइफ का जहाँ पे बस पढ़ना चाहिए और लाइफ को बिना किसी फिक्र के, बिना सोच के बस एंजॉय करना चाहिए। शुक्रिया सर बात करने के लिए। हमारे साथ इकबाल खान थे, भारतीय फिल्म जगत के एक्टर हैं और इतने समय लामार्ट्स पहुंचे हुए थे। लामार्ट्स में एक बेहतरीन कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसके माध्यम से बच्चों ने बहुत कुछ यहाँ पर सीखा। कैमरा सहयोगी अजय शर्मा के साथ अनुराग तिवारी, इमेज टुडे, लखनऊ।